نئے پاکستان میں انصاف کے نظام پر بڑا سوال، امیر کا کتا غریب کی زندگی سے زیادہ قیمتی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کا کتا زخمی، کیا ہوا؟ آسمان ٹوٹ پڑا، غریب کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ مظفر گڑھ میں دودھ فروش محمد اسماعیل رستے سے جا رہا تھا، کتا ٹکرا گیا، حادثے میں اسماعیل بھی شدید زخمی ہوا تھا۔ قیمتی کتے کو نقصان پہنچانے کا جرم، محنت کش کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ اسماعیل روپوشی کاٹنے پر مجبور، گرفتاری کے لیے پولیس کی دوڑیں۔ کیا امیر اور غریب کے لیے قانون اب بھی وہی پرانا ہے؟ عوام نے سوال اٹھا دیا۔ جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار، امیر لوگ، کیا انہی کے لیے ملک بنا ہے؟ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کو بھی کوئی انصاف ملنا چاہیے۔ آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومت تیار، مولانا تاریخ نہ بدلیں، اب اسلام آباد آ جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکا کی رائے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مدارس میں اصلاحات پر مولانا پریشان ہیں، ڈوبتی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کر لیں احتساب پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب یہ کہنا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کہ یہ اپنی ڈوبتی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی سیاست کو ڈوبنے سے نہیں بچا رہے، ہم تو آپ کو ڈبونے آ رہے ہیں۔ ہم اپنی ڈوبتی سیاست نہیں، آپ کو ڈبونے آ رہے ہیں۔ جے یو آئی رہنما مولانا عطا الرحمان کا آج نیوز کے پروگرام جی فار خریدا میں حکومت کو پیغام، بولے حکومت کو چلتا کیے بغیر اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ مولانا کا فیصلہ ہے، اگر وہ آ بھی جاتے ہیں، پڑاؤ کر بھی لیتے ہیں، حاصل وصول کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اسلام آباد آ بھی گئے تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں جے یو آئی کو پیغام، بولے 27 اکتوبر کو بھارتی فوج نے سری نگر پر یلغار کی تھی، تاریخ بدلیں نہیں تو آپ بھارت کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ 27 تاریخ کو حکومت کے خلاف احتجاج، بھارت کا راگ الاپنے کے مترادف ہوگا۔ سپورٹ کریں گی پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے سامنے؟ ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ مولانا کی ہمت بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی میدان میں، آصف زرداری نے مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب، آزادی مارچ میں کتنی مدد کر سکتے ہیں غور ہوگا۔ بلاول کہتے ہیں حکمران بے نقاب ہو چکے، اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ زیادہ جیل اور اٹک میں ہم ایکسائزنگ مشین رکھ رہے ہیں تاکہ وزن کم کرنے کی بھی چیز ہو جائے۔ مولانا صاحب بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نظام کو پٹری سے اتاریں۔ اپوزیشن کے مورچے پر حکومتی صفوں سے گولہ باری، شیخ رشید کہتے ہیں این آر او مل جائے تو ساری تحریک ختم ہو جائیں۔ فیصل باوجہ بولے مولانا طویل بیٹھک چاہتے ہیں، ایسا بچھائیں گے کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے۔ گورنر سندھ نے کہہ دیا مولانا کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ شہریار آفریدی کہتے ہیں مولانا اپنا شوق پورا کر لیں، حکومت خوف زدہ نہیں۔ بیرون ملک بھیجی گئی رقم واپس پاکستان نہیں لائی جا سکتی، چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے اعتراف کر لیا۔ کہتے ہیں ماضی میں ملک سے بڑا پیسہ باہر گیا، 20 سالوں میں سالانہ 6 ارب ڈالر بیرون ملک گئے، اس رقم کو واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگلے 30 سالوں میں پاکستان کی معیشت کا شمار بڑی مارکیٹس میں ہوگا، عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں آبادی کا تناسب گروتھ ریٹ سے دگنا ہے، مستحکم نظام کے ذریعے معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے اور دوڑنے کے لیے، میں سارا سوتا نہیں، نہ نیند آتی ہے مجھ کو، میرا دل چلنے پھرنے کو کرتا ہے، 4 بجے تک پڑا تو نہ رات کو نیند آتی، نہ دن کو، نہ کھانے پینے کی۔ عمر 16 برس اور وزن 200 کلو، سرگودا میں 16 سالہ لڑکا پراسرار بیماری میں مبتلا، غیر معمولی طور پر موٹاپے کا شکار، نثار خود سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، غریب والدین کو علاج کے لیے کسی مسیحا کی تلاش۔ فون کے
प्यासे मच्छर ने जिंदगियां छीन ली। कराची में डेंगू मुतासरा 31 साला शख्स चल बसा। मुल्क भर में भी सैकड़ों मरीज अस्पतालों में मौजूद। पंजाब में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। सिर्फ लाहौर में 217 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मसीहा बाज न आए। हड़ताल का 10वां रोज, आज भी ओपीडीज बंद, मरीज रुल गए। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने भी डॉक्टर्स का इलाज करने की ठान ली। कहते हैं अब एक्शन ही लिया जाएगा। शौकत यूसुफजई के पकोड़ों वाले बयान की मजम्मत। मुल्क भर में बादलों के घेरे, कराची में बरसात, कई इलाके भीग गए, मौसम खुशगवार। अंदरूनी सिंध में वक्फे वक्फे से बरसात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मेगा बरस पड़ी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कई इलाकों में दिन में खुनकी तो रात में सर्दी। कोसारों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र चरारों की सरजमीन मकबूजा कश्मीर का, जिसके हर नौजवान के हाथ में है वजीर आजम पाकिस्तान की तस्वीर। जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर कश्मीरी खुशी से झूम उठे। मजलूम अवाम जुमे की नमाज के बाद 61 रोज से जारी कर्फ्यू तोड़कर घरों से निकल आए। वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर थामे पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। मौसम की सख्तियां भी झेली और भरपूर एहतजाज किया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने सब दिखा दिया। वेलकम बैक। बुलेटिन में अब जिक्र नए पाकिस्तान में इंसाफ के पुराने निजाम का, जहां अमीर का कुत्ता गरीब की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर और वजीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफा खर का कुत्ता जख्मी क्या हुआ जैसे आसमान टूट पड़ा। मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद इस्माइल जा रहा था कि रास्ते में कुत्ते से जा टकराया। जख्मी कुत्ते को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, मेडिकल करवाया गया और नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे के खौफ से गरीब किसान रूपोश हो गया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में इंसाफ के पुराने निजाम का, जहां अमीर का कुत्ता गरीब की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर और वजीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफा खर का कुत्ता जख्मी क्या हुआ जैसे आसमान टूट पड़ा। मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद इस्माइल जा रहा था कि रास्ते में कुत्ते से जा टकराया। जख्मी कुत्ते को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, मेडिकल करवाया गया और नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के खौफ से गरीब किसान रूपोश हो गया। कुत्ते के जख्मी होने की FIR पर शहरी भी हैरान है। कहते हैं नए पाकिस्तान में भी गरीब की कोई इज्जत नहीं। सरमायादार, सनतकार, अमीर लोग, क्या उन्हीं के लिए मुल्क बना है? गरीबों का कोई परेशान हाल नहीं। सरदार, साईं, वडेरा, इनके कुत्तों की तो बात ही कुछ और है, लेकिन इंसान का कोई पुरसान हाल नहीं है। मीडिया चीखता रहता है, बंदे कत्ल हो जाते हैं, पर्चा नहीं होता, थाने में सुनवाई नहीं होती। एक बंदे के कुत्ते को हिट लग गई है तो इन्होंने उस बंदे पे पर्चा करवा के मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। ये किस तरह की तब्दीली है? कुत्ते की हैसियत ज्यादा है, एक इंसान की हैसियत ज्यादा है। इधर इंसान का कोई हैसियत ना हो तो हमारे हुक्मरानों से तो हमारा ये उम्मीद नहीं था कि ये सी कर सकते हमारे हर साथ। किसी तगड़े का कुत्ता भी मर जाए तो हर आवाम जी कि छितरौल करना शुरू कर देती है। कैसी हुकूमत है? पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का पहला टाकरा आज लाहौर में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कजाफी स्टेडियम में हुई। दोनों टीम्स ने मैच के लिए तैयारी पकड़ ली। शायकीन स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए बेताब। बुलेटिन में अब जिक्र वजीर आजम का, जिनका कहना है कि मदारिस इस्लाहात पर परेशान मौलाना फजल रहमान अपनी डूबती सियासत बचा रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, एहतसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मौलाना के इस्लामाबाद लॉकडाउन पर विफाकी हुकूमत का काउंटर प्लान। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के साथ सर जोड़ लिए। JUI के आजादी मार्च और धरने पर मशावरत हुई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कहा मौलाना फजल रहमान अपनी डूबती सियासत बचा रहे हैं। वो मदारिस इस्लाहात पर परेशान हैं। अगर इस्लाहात हो गई तो फिर तलबा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये कुछ भी कर लें, एहतसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत अवाम के जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करेगी।
वजीर आजम की गुफ्तगू पर शुरका ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान शौक से इस्लामाबाद आए। उम्मीद है कि मौलाना 27 अक्टूबर की तारीख नहीं बदलेंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुशीर खजाना ने हुकूमती इक़दामात और मौजूदा सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफ किया। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जिन्होंने आज़ादी मार्च की तारीख बदलने का मुतालबा कर दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 27 अक्टूबर को भारतीय फौज ने श्रीनगर पर यलगार की थी। मौलाना 27 तारीख पर नजरसानी करें। ये भी कहा कि मौलाना इस्लामाबाद आ भी गए तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। 27 अक्टूबर के दिन का इंतखाब गलत है। 27 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान की अफवाज ने यलगार की थी और कब्जा किया था। मैंने दर्दमंदाना अपील की है कि नजरसानी की जाए। मौलाना का फैसला है, अगर वो आ भी जाते हैं, पड़ाव कर भी लेते हैं, हासिल वसूल क्या होगा, उनके हाथ क्या आएगा। कारकुनों को दिलासा देने के लिए ये बातें की जाती हैं। प्लान 1 है, प्लान 1 पे भी इत्तेफाक नहीं है, प्लान 2 और प्लान 3 तो कुजा। जमहूरी एहतजाज में मौलाना फजलुर रहमान का मुकम्मल साथ देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहते हैं आज़ादी मार्च में मौलाना की कितनी मदद कर सकते हैं, फैसला पार्टी इजलास में करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हुकूमत घर जाए। हमारा बिजनेस कम्युनिटी इतना परेशान हो गया, कल हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तक पहुंचा था। कल हर इशू के लिए हर कम्युनिटी पार्लियामेंट के बजाय, पीएम हाउस के बजाय जीएचक्यू पहुंचेंगे। खान साहब ने खुद पार्लियामान को अंडरमाइन किया। सारे ऑपोजिशन पार्टीज का एक ही मुतालबा है कि धांधली ज़्यादा हुकूमत 1 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और उनको घर जाना पड़े। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी अपने पार्टी का इजलास बुलाया है ताकि हम अपना पार्टी से मशवरा करें कि हम कैसे किस हद तक मौलाना का मदद कर सकते। अपोजिशन एहतजाज के लिए तैयार तो वुज़रा ने भी करने शुरू कर दिए वार। वफाकी वुज़रा ने ताक कर मौलाना और हुकूमत की सफों से गोलाबारी अपोजिशन वुज़रा के निशाने पर आ गई। शेख रशीद ने कहा 5 को एनआरओ मिल जाए तो धरना खत्म हो जाए। 5 आदमियों को इमरान खान रहा कर दे तो सब धरना शरना जो है धड़न तख्ता हो जाएगा। इमरान खान धरने को कबूल कर लेगा, इन 5 लोगों को नहीं छोड़ेगा। फैसल वाडे ने कहा मौलाना के लिए अडियाला जेल में बेड लगवा दिया। अडियाला जेल और अटक में हम एक्साइज मशीन रख रहे हैं ताकि वजन कम करने की भी चीज हो जाए। शहरयार आफरीदी ने कहा हुकूमत गिराना मौलाना फजलुर रहमान के बस की बात नहीं। कंटेनर भी देने हैं, हलवा कहते हैं हलवा भी देंगे, जो चाहते हैं मौलाना साहब, लेकिन इंशाअल्लाह मौलाना साहब आपका ये इक़्तिदार का ख्वाब मेरे रब के फजल से कभी कबूल नहीं होगा। गवर्नर सिंध ने आजादी मार्च को जमहूरियत डीरेल करने की साजिश करार दे दिया। मौलाना साहब बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो इस निज़ाम को पटरी से उतारें और कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि मौलाना साहब की अपनी कोई गुंजाइश निकले बीच में। वुज़रा कहते हैं अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा करे, पीटीआई की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला महमूद खान के बयान पर केपी असेंबली में तूफान। अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी बोले धमकियां न दें वरना महमूद खान को उनके घर में बंद कर देंगे, जिस पर सीनियर वज़ीर आतिफ खान ने कहा कि अगर हमने अपने वर्कर्स को हुक्म दिया तो फिर कोई घर से नहीं निकल सकेगा। महमूद खान साहब हमें धमकी न दे, मैं हूँ साबिक़ वज़ीर आला और वो है मौजूदा वज़ीर आला। अगर हमने उसको घर में बंद नहीं किया तो मैं दुरानी भी नहीं होऊंगा और साबिक़ वज़ीर आला भी नहीं होऊंगा। ये मेरा चैलेंज है महमूद खान साहब को, ये मेरा वर्कर का चैलेंज है, ये मेरी जमात का चैलेंज है। महमूद खान साहब को घर पे बंद करने की तो हमने मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद इतनी अपोजिशन नहीं की जितनी हमने किया। तो हमारे वर्कर भी हैं और वो भी, उनको भी कोई इशू चाहिए, तो अगर हम भी, वो भी फारिग बैठे हुए हैं, तो अगर हम भी उनको किसी काम पे लगा दें तो फिर कोई भी घर से नहीं निकलेगा, ये आप याद रखें इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुकदमे की समाअत ओपन होनी चाहिए। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया।
پاکستان مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے. کیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن میں 2014 سے زیر سماعت ہے. اس پورے کیس کو اوپن ٹرائل کیا جائے اور اگر دوسروں سے عمران صاحب 1970 3 نسلوں اور ذاتی کاروبار کا سوال کر سکتے ہیں تو عمران خان سے ان کا سوال اور ان کی پارٹی کا سوال ہونا بنتا ہے. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ رہیے.